So hello and welcome everyone to this yet another exciting lecture of After Effects का beginner वाला series. Today we are going to learn shapes and थोड़ा बहुत शेप के बारे में एंड काफी सारी एनिमेशंस भी हम सीखेंगे. डेफिनेटली आज की क्लास में काफी कुछ होने वाला है. हम शेप्स क्रिएट करेंगे, उनको किस तरीके से एनिमेट किया जाता है, द वे शेप्स आर एनिमेटेड, the way shapes are created, and the way we can create some particular shapes that are not distinctly available inside of After Effects. Like for an example, you might think ki rectangle is a very easy example for a shape, but rounded rectangle people might know and people might not. So this is what we are going to learn in our today's class. It will be a very basic class and definitely I think you would like this class. Apart from that, I am hoping that you are completing your assignments on time, because if you don't, then definitely you will have to face some difficulties while claiming the certificate for this course. We really want that you get tens of and hundreds of clients just because of this course. हमारा main उद्देश्य, if we talk about our aim, the aim of our पूरी की पूरी मास्टर क्लास एंड ऑल दीज बिगनर फ्रेंडली क्लासेस इज कि आप कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अच्छे से काफ़ी अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाए बाय मेकिंग योर डिसेंट एंड गुड लुकिंग पोर्टफोलियोज. एंड उन्हीं पोर्टफोलियोज के हम काम कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू वी विल क्विकली गो इन टू आर सॉफ्टवेयर. हमेशा की तरह आई हैव नेवर ओपन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना. क्लास चालू होने के बाद ही हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं, just because you can see each and every step that I follow while editing my videos. Okay, so apart from that, I don't think so कि आज की क्लास में हमें कोई भी ऐसा डाउनलोड करना पड़ेगा एसेट्स. दैट इज़ व्हाट आई थिंक, ठीक है ना. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ब्राउज़र की, बट स्टिल आई टेल यू अ शॉर्ट सा इंफॉर्मेटिव प्लग इन that will help you in your creative journey. So what is the name of the plugin? It is called, what it is called? Deep Glow. ठीक है. So this is the software. I mean, this is the extension. This is the plugin. This is what Deep Glow is and what Deep Glow does. ठीक है. तो दिस इज हाउ डीप ग्लो वर्क्स. ये एक ग्लो ले आता है हमारी वीडियोस के ऊपर. सी इस तरीके के ग्लोज, सी इस तरीके के इफेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं डीप ग्लो की हेल्प से. डेफिनेटली दिस इज नॉट एन इफेक्ट वाली क्लास, तो डीप ग्लो का एक हल्का सा सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा दूंगा. एंड ट्रिम पाथ्स, डेफिनेटली जो हम लाइंस बनाते हैं, लाइंस में क्या हेल्प करता है, दैट विल आई tell you in our today's class. So this is the last thing that we worked on. Perfect. इस पर हमने काम किया था. We will create a new composition. Control and N is the shortcut. We will use the social media landscape, which is 1080 by 20. I mean 1920 by 1080 and 30 FPS. Quickly save this thing. And one thing that I want to do in our today's class is shapes. ठीक है? So I'll quickly Control T and write like theory of. Perfect. And the font I would use would be Cool Vertica, and I'll use Cool Vertica regular. Make this bold like this. एंड ये हम रख लेते हैं बीच का 0. दिस विल बी नॉर्मल. आई एम प्रेसिंग सी. यू कैन सी दैट करेंटली काफ़ी ब्लरी दिख रहा है. इट्स लुकिंग टू मच ब्लरी एंड ऑल. ठीक है, इट्स नॉट क्लियर. सो क्लियर कैसे करेंगे? कंट्रोल एंड जे. अब ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ मैं बस यहाँ से क्वार्टर जो लिखा है इसको फुल कर दूंगा, जो कि मैं टिल्डा का बटन यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, एस्केप के नीचे वाला. आई एम यूजिंग द टिल्डा की विच इज़ बिलो द एस्केप बटन in order to make this full screen and full screen, zoomed in and zoom out. So I'll do the very basics. Control Alt Home, Control Home, which takes it to the very center. And I'll write here theory of, and I'll duplicate this layer. The way I'm duplicating it is Control D.
ठीक है, दिस इज डुप्लीकेटेड एंड आई विल राइट शेप्स. अब सी, अभी कैसा दिख रहा है. डेफिनेटली इसका कलर हम रख देते हैं वाइट. थोड़ा सा वाइट की जगह वाइट से थोड़ा सा हम अलग शेड देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऑफ वाइट सा. परफेक्ट. एंड शेप्स को हम रख देंगे प्योर येलो. आई गेस दैट विल लुक मच बेटर. परफेक्ट. दिस. एंड नाउ कम्स the thing that I taught you in the last class, that is typography, the designing of texts. I'll select this, go into this, and I'll select Edwardian. Edwardian. See, I love this font because this goes best with this. Now I have to see where it belongs and कहाँ पर ये अच्छा लग रहा है. जैसे it's looking good here. ठीक है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बट इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर है. बट नेवरदलेस हमें यहाँ पे कुछ एनिमेट नहीं करना. सो आई क्विकली ऐड ड्रॉप शैडो टू दिस. ड्रॉप शैडो एंड इधर डिस्टेंस ज़्यादा रख लेंगे, समथिंग लाइक दिस. सॉफ्टनेस, यस. सी द 3D थिंग दैट करेंटली इट्स लुकिंग. सी, दिस इज व्हाट प्रोफेशनलिज्म मीन्स. सी, ड्रॉप शैडो हटा देंगे तो कैसा लगेगा. एंड विद द ड्रॉप शैडो इट्स लुकिंग क्लीन एंड इट्स लुकिंग डेफिनेटली एक्सपेंसिव. सो दीज 2 layers आर डेफिनेटली डन. वॉट आई डू, आई यूज शाई लेयर्स, द ऑप्शन ऑफ शाई लेयर्स. ठीक है, सो आई क्लिक दिस and I'll select these 2 layers. I'll lock this layer and I'll press this button, shy layers. ठीक है, so this is definitely inside our composition, but यहाँ दिखेगा नहीं. इसको enable करेंगे, इसको unlock करेंगे, तब this will apply perfectly. Perfect, I mean, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देंगे. theory of shapes, perfect. Now I'll quickly create some shapes for you. So first shapes जो हमारे रहते हैं वो बेसिक होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड पॉलीगन एंड वॉट एवर इट इज. So the only shape tool that we have inside our software is this. If we click this, this makes a rectangle. If I hold this, we have rounded rectangle tool, we have ellipse, polygon and star tool. Each tool has different options, and when we combine these options with our keyboard shortcuts like Control, Alt and Shift, the purpose and variation changes accordingly. ठीक है, so I have selected the rectangle tool. Now I am making a rectangle over here. ठीक है, it's currently making a rectangle, but just see now what is happening. अभी आप देख रहे हो ये मूव कर रहा है इसके साथ. ठीक है, the rectangle is, I am getting a preview of my rectangle, but as soon as I press Alt, see प्रीव्यू में सिर्फ ये बाहर की बाउंड्रीज दिख रही है एंड अंदर का नहीं. परफेक्ट. तो अगर आप चाहते हो भाई कि आपको ये अंदर का नहीं दिखना है, इसको यहीं छोड़ दो और बाकी इतने में काम करो, तो यू कैन डू दिस. ठीक है, ऑल्ट का ये पर्पस होता है. इफ़ आई प्रेस कंट्रोल तो सी ये सेंटर से स्केल करता जा रहा है. सी जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, लाइक अगर मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इफ़ आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड आई एक्सटेंडेड, नाउ आई प्रेस कंट्रोल तो सी इट कम्स टू द सेंटर and now it is getting scaled. ठीक है, from wherever I start that becomes the center point. See, if I start from this and press control, this becomes the center point. Perfect. Now if I want to make a square, I can do this. See, this is a square, but this is definitely not that kind of square. There could be a possibility कि यहाँ या तो लेफ्ट से गलत हो या तो राइट से गलत हो. But what we can do is we can press shift. As soon as I press shift, it becomes a perfect square. See, now it is getting snapped. ये स्क्वायर ही बनेगा. अगर मैं इसके साथ कंट्रोल दबा दूंगा तो सी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है तो यहीं से ये सेंटर भी कर देगा. सी ये सेंटर भी कर दिया. अब इसी के साथ अगर मैं ऑल्ट दबा दूंगा तो सी ये बाउंड्रीज के साथ भी खेल लेगा. सो दिस इज हाउ शेप्स वर्क. सिमिलरली इफ आई यूज द राउंडेड रेक्टेंगल टूल दैट आई पर्टिकुलरली लव. ठीक है ना, तो ये है मेरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल एंड सी मेरा राउंडेड रेक्टेंगल कंप्लीट है. ठीक है, सी द एजेस आर राउंडेड. परफेक्ट है.
Okay, so this is how rounded rectangle tool works. Apart from that, we have ellipse tool. If I just do this, this becomes a oval. If I press shift, it becomes a circle. Perfect. Similarly, if I press alt, the boundaries appear. I am pressing shift and now control. It is getting resized from the very center of the screen, from where I started making the shapes. Apart from that, we have another tool which is the polygon tool. Okay. First of all, I'll quickly make a polygon. See, like not that big. Okay. See, now keys work differently for this tool. When I am using the polygon tool, if I am just making a polygon, see, it is getting rotated. ठीक है ना? अगर if I want कि it doesn't get rotated, I'll press shift and see ये एक ही way में बढ़ेगा. Perfect. If I press alt, the same thing happens. The border only appears. ठीक है? So what I'll do, I'll quickly press shift and it is done. Now, see, there are so many options over here. This is a polygon, which means definitely this has more than 5 sides, because anything with one side is a line, anything with 2 sides is definitely an L shape, anything with 3 sides is a triangle, with 4 sides it's a rectangle or a square, and more than 4 it's called a polygon, which has more than 4 sides. So definitely it has 1, 2, 3, 4 and 5 sides. So we can change this thing. Let's say we want hexagon, which has 6 sides. So I'll increase these points to 6. Now this is a hexagon. If I want septagon, if it is a septagon, अगर इसे वही कहते तो this is a septagon and this is an octagon. 9 को पता नहीं क्या बोलते हैं, and this is a decagon. ठीक है. Similarly, अगर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो it becomes a circle, because a shape with infinite points and infinite faces is a circle. ठीक है. So I'll quickly write 3. It's a triangle. If I write 2, it doesn't happen anything. ठीक है. Because polygon का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा, I mean definitely 3 से ज़्यादा. ठीक है. 3 में काम कर रहा है, 4 में it becomes a square, diamond, rhombus, whatever you say. 5th में it's a polygon and 8th में it's an octagon. ठीक है. So you can make a star as well. टाइप में पॉलीगॉन है, स्टार है, हाँ, बट स्टार में आप चेंजेस कर सकते हो. सी, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इट हैज. परफेक्ट. इसको थोड़ा सा इतना करते हैं. एंड इनर रेडियस, सी, आपको बाहर चाहिए, लाइक व्हेन वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ पोस्टर्स जहाँ पे वी हैव टू राइट द प्राइस ऑफ सम थिंग्स पर्टिकुलर. ठीक है. तो उसमें हम ऐसा करते हैं बाहर की तरफ. इनर रेडियस के साथ खेल सकते हो. सी, या आउटर में कन्वर्ट हो गया. आउटर के साथ खेलोगे तो आपका इनर में चला जाएगा. सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है ना, आप कैसा चाहते हो. यू कैन मेक इट राउंड एज वेल. आउटर राउंडनेस, सी, नाउ इट हैज़ बिकम अ फ्लावर. सो बेसिकली इट लुक्स लाइक एन इमरती. अगर आपको पता नहीं कैसा होता है इमरती तो ऐसी दिखती है इमरती. सो बेसिकली हमने इमरती ही बना दी है एक, है ना, वैसी दिख रही है. सो दिस व्हाट यू कैन डू. Perfect. Now, what happens if I add trim paths to it? ये देखो क्या हो जाता है. आपको दिख रहा होगा ये एक एक चीज अब हटती जा रही है. मैं आपको सीधा रिजल्ट दिखाता हूं. So this is what trim path does. ठीक है. इसमें I'll remove the fill. And just see. इसको और स्मूथ कर दें तो ये कैसा लगेगा. We will go to the graph editor. इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, because it's looking good. ठीक है. सो दिस इज हाउ ट्रिम पाथ्स वर्क. तो मैंने बता दिया आपको कि व्हाट इज अ शेप. वील डिलीट दिस शेप लेयर एंड
if I make this to fit, currently theory of shapes is also written over the top of our screen. It's looking good. Now what we will do, we will quickly create a simple line. Okay, so before making a line, I'll tell you. Let's say I made a rounded rectangle. Okay, this is my rounded rectangle, but nothing is in between. Why? Because see, the fill is nothing over here. This is nothing. If I click this and select red, तो ये red आ जाता है. But what if I want to make, definitely fill पे करते हैं. Now apart from that we have stroke. Stroke का कलर आप चेंज कर सकते हो. Let's say we want blue, तो blue आ गया. And this is the stroke width. ठीक है, कितना width आपको चाहिए. Perfect. Now इसको black करते हैं. नहीं, not black, white करते हैं. But what if you want a gradient over here? So we'll press Alt on the keyboard and we'll click this thing. See, now it has become a gradient. Now if I double click this, we have the option of a gradient. This is the linear gradient and this is a radial gradient. But that gradient looks better when it is applied on a circle. So we'll quickly create an ellipse. Okay, this is my ellipse. We'll go to fit. Perfect. And यहाँ पे थोड़ा सा zoom करते हैं. Stroke को हम थोड़ा सा कम कर देंगे. And in the fill options, we will use the radial gradient. ठीक है, linear का मतलब होता है ऐसा and radial का मतलब होता है जो center से start होता है. Perfect है. So first we'll decide the colors, which is blue. And the second color, see, this is the color setup. यहाँ पे click करेंगे तो blue, and यहाँ पे click करना है, and we have to select our second color, which would be blue का ही कोई सा shade ले लेते हैं ताकि नहीं, let's say pink ले लेते हैं. Perfect, pink है. एंड इसे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग. दिस इज द स्लाइडर वैसे. ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो सी कलर इसी से डिसाइड होते हैं बेसिकली. ठीक है, आई एम प्रेसिंग ओके एंड सी ये हो रहा है हमारा ग्रेडियंट का एंड पॉइंट. ठीक है, सो हम थोड़ा से ऐसा कर देंगे. परफेक्ट है. तो सी दिस इज नाउ आर ग्रेडियंट. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अ ग्रेडियंट एज वेल. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है ग्रेडियंट ऐड करने का. हर एक कलर इसमें आप ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट दिस इज जस्ट अ थर्ड पार्टी थिंग. ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट. नाउ इसी पे क्लिक करेंगे एंड ऑल्ट दबाते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, ये फिल कलर ही हट गया. अब हमारे पास सिर्फ स्ट्रोक है. सी पीछे कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक है हमारे पास. फिर से क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस आ गया नॉर्मल कलर पे. सिमिलरली ऑल्ट प्रेस करेंगे स्ट्रोक पे तो स्ट्रोक में ग्रेडियंट आएगा. एक और बार ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये क्या आ गया, ये सेम ही ग्रेडियंट है. एंड एक और बार प्रेस करेंगे तो स्ट्रोक हट जाएगा एंड फिर से प्रेस करेंगे तो स्ट्रोक वापस लग जाएगा. क्लियर है. सो वील क्विकली डिलीट दिस शेप लेयर अगेन एंड इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि बड़े से हमें इजीली दिख पाए. एंड वी विल क्रिएट अ सिंपल सी लाइन. आई एम प्रेसिंग शिफ्ट ऑन माई कीबोर्ड वाइल क्लिकिंग दिस थिंग. ठीक है, सो दिस इज आवर लाइन. अब मान के चलो हमने इस लाइन को बना दिया. वी विल सिलेक्ट दिस लाइन यूजिंग द आर लेजेंडरी नॉर्मल वाला टूल. परफेक्ट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इसको थोड़ा सा खोलेंगे. वी विल एक्सपैंड दिस थिंग. वी विल गो टू कंटेंट्स, शेप, एंड इसमें देखो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास. हमें इस पर नहीं जाना, हमें यहाँ पर क्लिक करना है. छोटा सा ऑप्शन है ऐड. We will click and we will select the trim paths option. As soon as I click this thing, we get an option over here. ठीक है, this is the trim paths 1. ठीक है, start and now see we will animate the end offset. Perfect है. end offset के साथ हमें खेलना है. अब what I'll do, see अभी एक सेकेंड में पहले मैं ये लाइन हटा देता हूँ. सी कंट्रोल शिफ्ट एच एंड इज द शॉर्टकट. ठीक है, हम अगर व्यू पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा शो लेयर कंट्रोल्स. अभी आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जिससे मैं खेल सकता हूँ. ठीक है, सो दीज आर लेयर कंट्रोल्स. अभी आपको ये सब दिख रहा है, बट एज सुन एज आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये डिसअपियर हो जाते हैं. सो सी एंड जो है इसका यहाँ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एनिमेट कर सकता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसे कर दूंगा 0 एंड थोड़ा सा आगे जाके
इसे कर दूंगा 100। परफेक्ट है। इनको F9 करूंगा, वील गो इनटू द ग्राफ एडिटर एंड वील सिंपली क्रिएट अ प्यारा सा ग्राफ। या ये करते हैं, दिस लुक्स बेटर। ठीक है। सो दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस थिंग। अब सिमिलरली लेट्स से अगर इसको हमें थोड़ा सा एडिट करना है तो व्हाट आई विल डू, इसको मैं पकड़ के यहाँ ले आऊँगा। लेट्स से मुझे थ्योरी ऑफ के नीचे चाहिए ये, तो आई एम यूजिंग द मूव टूल। ठीक है ना, ये जो हमारा सिलेक्शन टूल है इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड इसे उठा के यहाँ ले आऊँगा। थोड़ा सा अलाइनमेंट हमें देखना पड़ेगा ताकि ये सीधा आए, बिकॉज अगर सीधा नहीं आया तो हमारी गलती रहेगी, तो सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। सो लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने अगर इसे यहाँ डाल दिया ऐसे, ठीक है, सो ये कैसे दिखेगा? ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू एनिमेट पाथ्स। परफेक्ट है, एनिमेशन कर दी हमने पाथ्स की। गुड। अब ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई क्रिएट अ पॉलीगॉन। ठीक है, दिस इज द स्टार टूल। I'll go into this and the transform will not transform. Yes, star and see. Currently it has 5 points. I have animated this. थोड़ा आगे जाएंगे and इसे कर देंगे इतना, तो see ये कैसे दिखेगा। इसे भी हम F9 कर देंगे and we will do the same graph. इसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, starting and end smooth होगा, तो see this is what you can create. But that is the reason I told you what is the purpose of keyframes inside After Effects. See, जो भी properties जहाँ पर you can see the stopwatch वाला icon, that can be animated, that can be keyframed. ठीक है ना, इन सब में आप keyframes डाल सकते हो। And that is the reason After Effects को हम इतना यूज़ करते हैं, because इसमें हर एक ऑप्शन में keyframe दे के रखा है। See keyframes। एक इसके अंदर कितने सारे ऑप्शन है, देखो वेव, क्या क्या ऑप्शन इसमें नहीं है, आप परेशान रहोगे। सी क्या बना सकते हो आप, ये वेव है इसकी, कुछ भी, मतलब आप जो सोच सकते हो ना वो आफ्टर इफेक्ट्स में आप कर सकते हो। सी हर एक चीज़ कैन बी की फ्रेम, देखो कितने सारे की फ्रेम्स हैं। दैट इज़ द रीज़न आफ्टर इफेक्ट्स इज़ यूज फॉर मोशन ग्राफिक्स, बिकॉज इट्स यूज़र फ्रेंडली एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। एंड जस्ट सी दैट इतना कुछ एडवांस हम सीख रहे हैं जस्ट इन द बिगिनर क्लासेस, बिकॉज दिस इज़ अ बिगिनर लेवल थिंग्स। इससे ज़्यादा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ द बिगिनर क्लास। काफ़ी बेसिक हम जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। अब लेट्स से ये तो सारा हमारा काम हो गया। अब दो चीज़ें बची हैं, आपको मुझे सिखाना है कि कैसे एक लाइन बनाते हैं हम कर्व वाली। तो आई क्लिक हियर एंड आई एम नॉट रिलीजिंग माई माउस, यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। तो सी यू गेट दीज 2 हैंडल्स, दिख रहे हैं, दीज आर 2 हैंडल्स। परफेक्ट है। अब इसको ड्रैग करेंगे अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी ले जाना है। लाइक हमें अगर ऐसा एक पैटर्न बनाना है ऐसा, तो अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा एंड इन हैंडल्स के ज़रिए एक और कर्व बना दूंगा। परफेक्ट है। एंड आई प्रेस V ऑन माई कीबोर्ड। सी ये हमारा एक शेप बन गया। परफेक्ट है। इफ़ आई डोंट वांट द फिल कलर आई विल क्विकली क्लिक दिस। सी स्ट्रोक, सिर्फ स्ट्रोक है, फिल इज़ नॉट अवेलेबल। तो इसे ऐसे डिज़ाइन कर दिया हमने। सी अब इसे मैं क्या कर दूंगा, सेम वील डू दी ट्रिम पार्ट्स। वेयर इज़ द ट्रिम पार्ट? सबसे पहले हाँ राउंड कॉर्नर्स भी कर सकते हैं। दिस लुक समथिंग गुड कभी कभी, बट ओके देखते हैं डज इट मेक्स एनी डिफरेंस। कुछ आ रहा है? नोप नहीं आ रहा, रहने दो, कोई बात नहीं। ओके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर, जो चाहो आप कर सकते हो, बट व्हाट आई लाइक इज़ ट्रिम पास ओनली। ठीक है, ट्रिम पास पे गए
एंड डिपेंड करता है आपको कहाँ से एनिमेट करना है। मुझे यहाँ से ये ऐसा एनिमेट करना है, तो आई विल गो टू द एंड वाला पार्ट। ठीक है, एंड पे मैंने एक डाला की फ्रेम, एंड इस ये प्ले होगा कब तक आएगा, यहाँ तक। तो यहाँ पर आई विल राइट 100, F9, and we'll create the same graph for it. ठीक है, अब नाउ आर क्लास इज येट कंप्लीटेड फॉर टुडे। ठीक है ना, और इससे ज़्यादा आपको आज की क्लास में मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज दैट विल बी टू मच फॉर यू, एंड यही है जो हमें आज समझना है। हाँ, एक टॉपिक जो हमारे पास रह जाता है वो है लोगो एनिमेशन। अब लोगो एनिमेशन में क्या होता है, हम ऐसी शेप्स बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ माई लोगो, लेट्स से इसका अंदर का कलर होगा वुड बी समथिंग लाइक दिस। स्ट्रोक डालें नहीं डालें, स्ट्रोक नहीं डालते हैं, ठीक है, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई क्विकली गो टू एनी आइकन वाला पैक, लाइक फ्लैट आइकन। दिस इज अ फ्री वेबसाइट, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट येस आप यहाँ पर आके काफ़ी सारे आइकन्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सी देयर आर प्लेंटी ऑफ आइकन्स ओवर हियर। सो आई विल राइट ट्विटर। प्लीज़ कमेंट्स में कोई नहीं लिखना कि ट्विटर ख़त्म हो चुका है, एक्स हो गया, बट ठीक है, मुझे ट्विटर ही चाहिए। परफेक्ट है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डाउनलोड दिस लोगो and I'll import, drag and import this thing over here. I'll scale this down, इसको लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट होम एंड कंट्रोल होम, अभी दोनों आगे सेंटर में। अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड आई विल स्केल दिस थिंग अप, ठीक है। पीछे का कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से आई विल हैव वाइट ओवर हियर। परफेक्ट है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई पहले शेप आएगा देन बाद में लोगो, ठीक है। तो इसकी स्केल हम रखेंगे 100% यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, आई विल डू सम एनिमेशंस, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, स्केल वुड बी 100%, ठीक है। 100% ये कब होगी, मतलब ये 0 से 100 आएगी ना, पहले ये नहीं दिखेगा फिर हम इसे दिखाएंगे, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करेगा देन ही आएगा। तो एग्जिस्ट ना करने के लिए स्केल शुड बी 0 0। एंड सिमिलरली ट्विटर का बाद में आएगा, पहले पीछे का शेप एनिमेट होगा। सिर्फ इसको सोलो कर लेंगे, इसलिए सोलो काम आता है। सी पहले ये हुआ, परफेक्ट, पहले ये आया, देन उसके बाद हमारे ट्विटर का लोगो आया। इसको भी सोलो कर लेते हैं। अब इसको भी हम डालते हैं स्केल पे 69.5 एंड यहाँ पे हम डाल देंगे 0। सी थोड़ा सा आगे करते हैं, पहले लोगो नहीं आएगा। येस, दिस इज द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा और भी अच्छा इसमें ला सकते हैं हम, रोटेट कर सकते हैं इसे हम, लाइक स्टार्टिंग में ये ऐसा रहेगा देन ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब अभी ये काफ़ी बेसिक लग रहा है ना, काफ़ी बेसिक लग रहा होगा। इसकी सोलो चीज़ें हटा देते हैं हम, ठीक है। अब सब देखेंगे एक साथ, ठीक है। ओके, इन दोनों को नीचे कर लेते हैं हम थोड़ा सा, बिकॉज इट इज़ इंटरफेयरिंग आवर थिंग्स। अभी पोजीशन एनिमेट नहीं करिए तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। सो अभी काफ़ी अजीब सा दिख रहा होगा, आप देखना, अच्छा दिख रहा है नो डाउट, बट थोड़ा सा इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ द ग्राफ एडिटर एंड द मोशन ब्लर। मोशन ब्लर चलो बाद में ऐड करते हैं। वी विल इन द ग्राफ पैनल select F9 and for these two F9 I'll select the lower layer and scale पे क्लिक करेंगे एंड उसका ग्राफ चेंज करेंगे। हमें ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए फास्ट से स्लो आए। Similarly I'll do this for the upper layer as well। इसके साथ किया, अभी हम स्केल के साथ करेंगे इसकी। परफेक्ट, इसके साथ भी विल डू द सेम थिंग, कुछ ऐसा।
नहीं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो वील हैव टू ट्राई दिस थिंग कि क्या अच्छा लग रहा है। अब हम खेलेंगे रोटेशन के साथ, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ये, ठीक है। रोटेशन को मैं यहाँ से ईज आउट कर दूंगा कि बड़े धीरे से जाए। अब हमें खेलना पड़ेगा स्केल के साथ बिकॉज टाइमिंग मैच करनी है हमें। यहाँ पे ईज आउट, परफेक्ट। सो सी हाउ गुड इट्स लुकिंग, ठीक है। हमने छोटा सा एनिमेशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो इसे व्हाट वील डू, वील सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज एंड आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी। व्हाट एम आई डूइंग, आई एम प्री कंपोजिंग दीज लेयर्स। प्री कंपोजिंग बेसिकली मीन्स कि आप दोनों लेयर्स को इकट्ठा करके एक लेयर में डाल रहे हो, परफेक्ट है। सो आई सेलेक्ट ऑल दीज टू। आप कहीं यहाँ से भी दूसरी, देर आर many ways to pre-compose your layer, ठीक है ना। we can go to this layer option and select pre-compose and I'll click OK। see दोनों लेयर को एक कंबाइन कर दी इसने, परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा, कहाँ पे डालें, लाइक यहीं, यहाँ ही सही है, ठीक है। सो सी हाउ इट्स लुकिंग। सो दीज आर द एनिमेशंस दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर टुडेज क्लास, परफेक्ट। अब एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो कि चेरी ऑन द टॉप है। हमारी ये जो शेप लेयर है, हम इस पर ग्लो ऐड कर सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा भी दिखेगा, ठीक है। सो ग्लो ऐड कैसे करेंगे, आई हैव थर्ड पार्टी प्लगइन कॉल्ड डीप ग्लो। या आप नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, आपके पास वो है नहीं। सी मैंने डीप ग्लो ऐड किया एंड सी इसने क्या क्रिएट कर दिया, रेडियस बढ़ा देंगे एंड एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देंगे एंड मैं इसे टिंट भी कर सकता हूँ। तो सी रेड कलर हो गया, चाहूँ तो इसे ब्लू भी कर सकता हूँ, इससे कलर का कर देते हैं, काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड अब अगर इसे मैं प्ले करूँ तो सी थोड़ा सा टाइम लेगा, येस, बिकॉज थोड़ा सा हैवी चीज़ हो गई है। परफेक्ट हो गया ये, आप देखना अभी प्ले कर देगा नॉर्मली, ठीक है। सो दिस इज ग्लो एंड दिस इज विदाउट ग्लो, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर आर सर्टेन छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट रहता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव दिखता है, ठीक है ना। आपका कॉम्पोजिशन जो रहता है दैट लुक्स अ बिट मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास एंड फॉर यू द होमवर्क फॉर टुडे इज कि यू हैव टू क्रिएट अ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू ऐड दिस title, the theory of shapes. I have written theory of shapes. It's particularly and definitely it's your call कि आपको क्या लिखना है ऊपर। You have to create a title and you have to animate some lines over here. आपको ये लाइन क्रिएट करनी है एंड अभी मैंने किया है ट्विटर का, ठीक है। आई एम टेलिंग यू लोगो जिसको आपको एनिमेट करना है। ओके, सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। आपको एक इस इंस्टाग्राम के लोगों को वो करना है, एनिमेट करना है। एंड आई वांट कि छोटा सा आपको वाइट सा दिख रहा है ना डॉट, ये डॉट भी एनिमेट हो, मतलब लोगो आने के बाद ये डॉट को आपको एनिमेट करना है, ठीक है ना। लाइक ये डॉट सबसे आखिरी में आना चाहिए। सो ये आपका कॉल है कि आप इसे कैसे करोगे, क्या दिमाग लगाओगे। जितना हो सकता है दिमाग पूरा का पूरा लगाओ आप, बिकॉज दैट विल हेल्प यू लर्न द सॉफ्टवेयर इन अ बेटर वे, ठीक है। आई हैव यूज इन शायलेज, आप चाहो तो शायद कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं करना तो नहीं कभी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। यू हैव टू एनिमेट एन इंस्टाग्राम आइकन एंड जिसमें मुझे जो डॉट रहता है वो मुझे लास्ट में चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू एनिमेट अ लाइन एज वेल, ठीक है। और एक अच्छा सा टेक्स्ट टाइपोग्राफी भी मुझे ऊपर चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। सो that is it for today's class. Thank you and thank you so much for joining in this very exciting class. आज की क्लास में आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हो एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ अब हम एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट्स में, जस्ट बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज टू गेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज क्लास। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।